لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ دعا جو قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد ہوتی ہے، تو جب سب بیٹھے ہوں گے فرض نماز کے بعد اس حدیث کی روشنی میں دعا مانگیں گے کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا میں قبولیت کا امکان کیا ہے، زیادہ ہے۔ تیسری آتا ہے کہ اجتماعیت میں کیا ہے، برکت ہے۔ تو تینوں کا ملا کے فرض کے بعد آپ نے کیا کر لیا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اس طرح سے کبھی حدیثوں کو ملا کے مسئلہ نہیں نکالا جاتا، ایسے تو بہت سارے مسائل شریعت کے چینج ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو نبی نے خود اس پر کس طرح سے عمل کیا۔ جس نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس کا اپنا عمل اور صحابہ کا اپنا عمل کیا تھا۔ تو 5 ٹائم نماز ہوتی تھی، ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے، پوری زندگی ہوئی ہے، پھر صحابہ نے ہمیشہ پڑھی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا یہ مطلب نبی کی نظر میں یا صحابہ کی نظر میں ہوتا کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، تو 2-4 حدیثیں تو ملتی نا ہمیں اس پہ کہ کیونکہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحابہ بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر آمین آمین ایک بھی نہیں ملتی یار ہمیں۔ تو ہمیں پتا، پھر ہم یہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو ہم جب دوسری حدیثیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام پڑھا کرتے تھے۔ کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا آیت الکرسی پڑھو، کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ دعا پڑھو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو وظیفہ ہے نا، وظیفہ کہتے ہیں اسپیسیفک مخصوص الفاظ کے ساتھ جو حدیث میں دعائیں منقول ہیں، پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی آیت الکرسی اور اللہم انت السلام والی جو دعائیں ہیں نا، ان کو دعا سے تعبیر کر رہے ہیں جو اصل میں وظائف ہیں۔ جیسے اور یہ جیسے ہم کہتے ہیں اذان کے بعد کی دعا کہتے ہیں کہ نہیں، تو کیا وہ ہاتھ اٹھا کے مانگی جاتی ہے؟ وہ ایک وظیفہ ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس وظیفے کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا۔ تو اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعا، تو کیا وہ ایسا کہ 4 آدمی اجتماعی داخل ہو رہے ہیں، چلو بھائی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، تو وہ اسپیسیفک الفاظ ہیں اللہم افتح لی، انفرادی طور پر۔ تو ہم حدیث کو اگر حدیث کی روشنی میں حل کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی نے جو فرمایا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ دعا سے مراد کیا ہے؟ وہ اسپیسیفک مخصوص الفاظ کی دعائیں ہیں، وہ قبول ہو جاتی ہیں فرض نماز کے بعد۔ اس طرح سے دونوں طرح کی حدیثوں میں کیا ہو جائے گی؟ تطبیق۔ یہ دلیل تو میں نے دی اہل حدیثوں کے لیے، اور جو تقلید کرتے ہیں فقہ حنفی کو یا فقہ شافعی کو فالو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بھی دلیل ہے۔ اور ایک اور دلیل کیا ہے کہ بھئی آپ ایک طرف ہی اعتراف کرتے ہو کہ ان ائمہ کرام نے، فقہا نے قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھا ہے، عقلی بات ہے نا، ہم تو کہتے ہیں بھائی اہل حدیث سے زیادہ ابو حنیفہ نے سمجھا ہے، امام شافعی نے سمجھا ہے۔ تو ہم جب ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے، ان کے قول کو ہم حدیث کے خلاف کبھی بھی نہیں لے کے جاتے، یاد رکھو۔ حدیث کی تشریح میں ان کے اقوال کو پیش کیا جائے گا، حدیث کے مخالفت میں تو پیغمبر کی بات مانی جائے گی، لیکن حدیث کی ایکسپلینیشن میں ہم ان کی بات کو کیا کرتے ہیں، آج کے اسکالرز کی رائے پر ہم ان کو کیا کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ تو ان اسکالر سے اگر پوچھا جائے تو ان چاروں فقہ کی کتابیں جن پہ صدیوں سے فتویٰ دیا جاتا رہا ہے، کوئی ایک جزیہ، ایک عربی عبارت بھی ہمیں نہیں ملتی جس میں آتا ہو کہ امام کو چاہیے کہ وہ سلام پھیرے، مقتدیوں کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے وہ۔ حالانکہ فقہ کی کتابوں میں بہت باریک باریک جزیات بھی ہوتے ہیں، بہت معمولی سی چیزیں بھی ہائی لائٹ کی ہوتی ہیں انہوں نے۔ تو صدیوں تک یہ سارے فقہا کیوں خاموش رہ گئے ایک ایسی چیز سے جو دن میں ایک دفعہ نہیں بلکہ کتنی دفعہ ہو رہی ہے، 5 دفعہ ہو رہی ہے؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اب جب دیوبندیوں سے بات کرو تو ان کے پاس سوائے علماء دیوبند کے حوالے کے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں بھائی علماء دیوبند نے اب کے علماء دیوبند کے آپ حوالے دے رہے ہیں نا، جب علماء دیوبند کوئی بات کریں گے تو ان پر بھی تو لازم ہوگا کہ وہ دلیل پیش کریں، انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم علماء دیوبند کے مقلد ہیں۔ بھائی تقلید ہم صرف مجتہدین کی کرتے ہیں اور کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ بھی اس لیے کرتے کہ ان کے پاس علم ہم سے زیادہ تھا۔ تو آپ اگر علماء دیوبند سے رابطہ کرتے ہو تو جو علماء دیوبند کہہ رہے ہیں کہ کرنی چاہیے، تو سوال پہ تو دلیل کیا ہے؟ تو دلیل میں نہ فقہ کی کوئی عبارت عربی کتابوں کی، اردو کی بات نہیں کر رہا، اور نہ قرآن و سنت سے کوئی حوالہ یہی ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رفع الیدین سے دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اجتماعی دعا میں قبولیت کا امکان زیادہ۔ ایسے 3 چیزیں آپ ملائیں گے تو پھر بریلوی حضرات جو نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں پھر تو وہ بھی ثابت ہو جائے گی۔ اچھا بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کبھی بھی کرو۔ بریلوی حضرات یہی تو کہتے ہیں مگر جنازہ کے بعد دعا کریں تو دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کبھی بھی کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں بھائی نبی نے جنازہ ہی کو دعا قرار دیا ہے، بس اس کے بعد دعا نہیں ہوگی، تو وہی دلیل ہم فرض نماز کے بعد دے رہے ہو، تو بھائی کوئی ٹائم نہیں ہے، جب چاہے کر لو، تو پھر کبھی کر لو نا۔ ہمیشہ کنٹینیو کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ اس عمل کو کیا سمجھتے ہیں، سنت۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ضروری سمجھ کے نہیں کرتے، بھائی اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ امام نہ کرے نا اس کو امامت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ علماء دیوبند کا یہ متفقہ فیصلہ بھی نہیں ہے، میں علماء دیوبند کی توہین نہیں کر رہا کہ یہ کہہ کے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، یہ توہین جب ہوتی جب سارے علماء دیوبند کا یہ فیصلہ ہوتا۔ علماء دیوبند میں جو چوٹی کے علماء ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاد ہیں، وہ کوئی علماء دیوبند کے معمولی عالم نہیں تھے، ان کا پورا رسالہ ہے اس پر کہ فرائض کے بعد یہ جو دعا کا ہمارے یہاں رواج ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل بتائیں پورا اس پہ تفصیلی رسالہ
रिसाला है। अभी रिसेंटली हजरत मौलाना मंजूर मिंगल साहब का भी इस पे बयान आया है, उन्होंने भी कहा कि ये साबित नहीं है और जिन्होंने इस पे रिसाला लिखा है वो कोई दलील उनके पास है नहीं। तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक रस्म है, जब ये चल पड़ी तो फिर अब इसके दलाइल। अच्छा, हमारे यहाँ बाज लोग तो अहले हदीस की मुखालफत में गुलूफ करते हैं, क्योंकि ये मसला ज्यादा उठाया अहले हदीस ने कि फराइज के बाद दुआ नहीं है। अब होना ये चाहिए था, हम तहकीक करते, हम कहते भाई अहले हदीस सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी बाज लोगों को देवबंदियत का कुछ जरूरत से ज्यादा हैजा है। उन्होंने कहा चूंकि उलमा देवबंद में रिवाज है तो अब नहीं भी है तो इसको साबित करके छोड़ना है हमने। तो क्यों गलत चीज में यार, आप मान लो भाई इसमें अहले हदीस क्या कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि फिक़ह की किताबें भी इससे खामोश हैं, कुरान और सुन्नत भी इससे खामोश है। तो यार हम फिर भी ब्रॉड माइंडेड बनते हैं कि उम्मत में फितना पैदा ना करो, ठीक है ना। अगर इमाम मांग रहे हैं उसको मांगने दो, आप हाथ नीचे करके बैठे रहो, बस खत्म हो गई बात। फिर भी कोई मांग रहा है तो मांगता रहे। मैं कितने साल से ये मसला बयान कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी तमीज से। मेरे कोई भी शागिर्द ऐसा नहीं किसी इमाम को जाके टॉर्चर करना शुरू कर दे, क्यों मांग रहे हो, साबित नहीं मांगने दे, इससे बड़े बड़े मसाइल है। ये मसला क्या है, दुआ ही मांग रहा है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ और कर रहा है, ठीक है ना। तो और फिर आमी आदमी के लिए तो मुफ्ती का जो माहिर मुफ्ती है उसका कौल ही हुज्जत होता है, उसको आप बेचारे को वो भी मौलवी साहब कोई दलील पेश कर दें, वो कहाँ जाएगा। तो भाई बड़े बड़े मसाइल दुनिया में, छोटे छोटे क्या है, इनको पी जाओ। तो इसलिए मैं ये छेड़ता नहीं हूँ, लेकिन अब छेड़ दिया तो इसलिए मैं छिड़ गया हूँ थोड़ा सा, वरना बहुत दफा ये पर्चियां आती मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि मस्जिदों में हो रही है दुआएं। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह ने भी लिखा है पूरा रिसाला के साबित नहीं है, आखिर में लिखा है कि किसी मस्जिद में बहुत अरसे से मामूल चला आ रहा हो तो एकदम न छुड़वाएं, और फितने का अंदेशा हो तो खामोश ही रहें, क्योंकि मस्जिदों में लड़ाइयां लड़वाना ये भी कुरान और हदीस से साबित नहीं है। इज्तिमाई दुआ इसको छुड़वाने के लिए फटे शुरू कर दो तो बारिश से भागा परनाले के नीचे खड़ा हो गया, वो वही मिसाल हो जाएगी। एक आदमी ने जिना किया, हमल ठहर गया, बच्चा हुआ तो पकड़ा गया, औरत को पूछा तू तो शादीशुदा है नहीं, ये बच्चा कहां से, उसने फलां से जिना किया था, हमल ठहरा था। लोगों ने उसको पकड़ के मारा तो उसके दोस्तों ने कहा कमबख्त, जब तू जिना कर रहा था तो हमल रोक लेता, हमल क्यों होने दिया। उसने कहा हमल रोकना इस्लाम में मकरूह है। उन्होंने कहा ये जो कर रहा है ये क्या है। तो इज्तिमाई दुआ को मैं साबित नहीं समझता, लेकिन इज्तिमाई दुआ की बुनियाद पर इमाम साहब को ये कहना कि ये हदीस को नहीं मानते और ये अंधे मुकल्लिद हैं और इनके पास दलाइल नहीं है और टॉर्चर करना, ये उससे बड़ा जुर्म है। अगर इज्तिमाई दुआएं मस्जिदों में हो रही हैं ये इतना बड़ा इशू नहीं है, आप अपनी राय पेश कर दें, खामोश हो जाए, मान ले ठीक है नहीं है। हमारे ही मेरे ही असातिज़ा बाज ऐसे हैं जो इज्तिमाई दुआ के कायल हैं, हम तो नहीं इनकी तौहीन करते, कहते भाई ठीक है, हो सकता है मेरे उस बयान पे वो मेरी क्लास भी लें, क्या बोल रहा है भाई तू, ठीक है ना। तो ना मैं उनकी कभी तौहीन करूंगा, मैं बोलूंगा भाई ठीक है, लेकिन हम तो पाबंद किसके हैं, कुरान और सुन्नत के पाबंद है ना, कुरान और सुन्नत के। हमें यही समझ में आ रहा है भाई अब क्या करें, लेकिन हम तौहीन थोड़ी करेंगे ना उनकी कभी। और मेरे से ज्यादा इल्म भी है उनके पास, तकवा भी है, सब कुछ है ना, हमारे दिल में उनकी कभी कोई कमी आएगी। तो इस ज़र्फ के साथ अगर आप इस राय को लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जैसे हैं फिर वैसे ज्यादा ठीक चल रहे हैं, मार्केट में वैसे ही चलते रहे। समझते हो बात को, तो साबित नहीं है। बल्कि मैं एक बात और कहूं, इनफरादी भी साबित नहीं है, यानी इनफरादी तौर पर भी फर्ज नमाज के बाद रफुल यदैन की एक ज़ईफ रिवायत मिलती है हमें। हालांकि फिक़ह का कायदा है, उसूल फिक़ह में पढ़ाया जाता है कि जिस चीज में इब्तिला ज्यादा हो उसमें एक दो रिवायतों से मसला साबित नहीं होता। 5 टाइम नबी ने कई साल नमाज पढ़ी है, तो सिर्फ एक रिवायत क्यों है कि नबी ने रफुल यदैन से दुआ मांगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, और वो भी ज़ईफ है। लेकिन सही मान भी लो अगर, तो इससे पता चलता है ये भी कभी कभार है फर्ज के बाद इनफरादी भी हाथ उठा के। अब आप कहोगे फिर करें क्या, दुआई छोड़ दें ना, दुआ ना छोड़ें आप ये करें कि फराइज के बाद ये अल्लाहुम्मा अंतस सलाम और ये जो अहादीस में वज़ाइफ हैं ये पढ़ने के बाद सुन्नतें पढ़ें, उसके बाद आप जितनी चाहे दुआ मांगे, लंबी लंबी दुआ मांगे, ये फिर अफजल अमल है। क्योंकि एक जो इज्तिमाई हयात थी वो क्या हो गई है, खत्म। इनफरादी तौर पर तो दुआ का वाकई कोई टाइम नहीं है, जब चाहे जितनी चाहे मांगे आप। नबी ने क्या फरमाया, जिसने ख्वाहिशात को अपना हदफ बनाया कि मैं ये ख्वाहिश ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो आपने क्या फरमाया, क्या उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, क्या वो खुशियों में आ जाएगा? ना 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 ना, ये पैगंबर कह रहे हैं, अल्लाह के सच्चे पैगंबर, वो कभी भी खुशियों में नहीं आएगा। फरमाया उसको क्या सजा मिलेगी, जअलल्लाहु मन कानतिल दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि, दौलत के पीछे भागेगा ना तो अल्लाह उसके सामने फक्र फाका का खौफ रख देंगे। समझ रहे हो, दौलत के पीछे भाग रहा है, आ रही है, मिल भी रही है, लेकिन खौफ क्या होगा कि ये मुझसे छिन न जाए, इस बात की टेंशन, यार ये खत्म ना हो जाए, यार ये छिन न जाए, यार कोई कारोबार को नुकसान ना हो जाए। बड़े बड़े करोड़पति फैक्ट्रियों के मालिक आते हैं, कहते हैं कि लाशऊरी सा खौफ हमें सताता है, दुनिया की हर नेमत उनके पास, मगर दिमाग में ना एक कह रहे हमें खुद भी नहीं पता हम डर किस चीज से रहे हैं, लेकिन सुकून नहीं है, एक लाशऊर में खौफ है जो हमें मुसलसल सता रहा है। यहाँ एक आयत कई साल पहले, सफेद टोपी, पूरी प्रॉपर दाढ़ी और जनाब सफेद कुर्ता, बड़े ऐसे नूरानी चेहरा और पक्के नमाजी थे, बहुत बड़े ताजिर,
مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی. کہنا میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں, اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے, میرے دل میں سکون نہیں ہے. میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں, کوئی پرابلم ہے تو بتائیں. کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں. میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی, آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی. تو نماز تو آپ نے پڑھ لی, آپ نے زکاتیں بھی دے دی, آپ نے روزے بھی رکھ لیے, لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا, اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شیورٹی, یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں, لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے یہی خوف ہے. میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو, یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو, لیکن یہ علاج نہیں ہے. میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ, ابھی برباد ہو گئی, اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی, اب ہوگا کیا؟ کہہ رہے کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے, رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا, کوئی بات نہیں, انجوائے کرنا. دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ بولو نہیں. ہماری بیسک ضرورت ہے, جب شدید بھوک لگے, بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, کھانے کو روٹی مل جائے, یہ بیسک ضرورت ہے. نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے. یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے, آپ اگر نہیں سونا ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو. اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا, نیند نہیں ہو رہی, ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے, پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا, بڑا لمبا بس کا سفر تھا, سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا. تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا, تو پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی, تو میں ایسا سویا ہوں, کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں, وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب, پھر جب ادھر کو دھڑام سے اس کے اوپر گرا, وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار, پھر ادھر میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی. تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو. اور جب گہری نیند آتی ہے نا, انسان پہ مسلط ہوتی ہے, بے شک نرم گدا نہ بھی ہو, سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے. آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی, کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے, کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے, ایسا مزہ آتا ہے سونے میں. وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا, وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو, وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا, اس کو سکون تھا نا, اس کی سکون نہیں تھا اصل میں, وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کے ادھر سے پیسے, تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی, تو میں نے کہی تو بتائے گا ٹھیلے پہ سو رہا ہے. مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا, جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے, آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے, وہ آ جائے گی, کہیں بھی آ جائے گی, بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے. اور کھانے کی ضرورت, اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا. اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں. شدید بھوک لگ رہی ہو نا, دال کھانے کا اپنا مزہ. میں نے کہا دال مل جائے گی. پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, جب اتنی غربت ہوگی, خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو, جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن. مسافر خانہ ہے نا بھائی, نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریک حیات ہے. جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ, جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ. تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی, بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھوڑا, کیا خیال ہے. اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو, بولو وہیں رہو. اب کیا کرنا ہے, غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے. لیکن تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل, لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں, مسافر خانہ ہے, ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی ہو. تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی, کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم مسافر خانہ ہے, ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا. ارے فیکٹری تم نہیں مرے, فیکٹری مر گئی ہے, زیادہ اچھا ہے. اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی. کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو, لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے تیری فیکٹری کو مار دیں. آدمی کہتا ہے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری, مجھے بچا لو. یہی ہوگا نا, مجھے بچا لو. تو ان کو تھوڑا سکون ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, علماء کے پاس ہی بیٹھتے ہیں, مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے کٹر ابل رہے ہیں. آپ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں, بڑی بڑی داڑیاں, تہجد گزار, اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف, لیکن دل میں دنیا کی محبت کے کٹر پالے گا ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے, گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے, گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا, گٹر, وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو, بارشوں میں ہماری گلی کو آگے دیکھ لیا کرے گٹر کیسے ابلتے ہیں, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے, ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے, تتخذون مصانع
लअल्लकुम तखलुदून, ए मेरी कौम तुम घर इतने मजबूत बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है, इतना पैसा इन दीवारों में क्यों फूंक रहे हो? हालांकि वो हलाल पैसों से घर बना रहे थे, वही हराम से थोड़ी बना रहे थे, हराम से नहीं बना रहे, फिर भी पैगंबर एतराज कर रहे हैं कि मौत को भूल गए हो तुम, इतना सरिया बुनियादों में डाला जा रहा है, लोग बता रहे थे हमने ये सरिया डाला। मैं कहता हूँ अपनी हड्डियों में तो कैल्शियम है नहीं तुम्हारे, पहले अपनी हड्डियों में सरिया डालो भाई, हड्डियां बोसीदा हो रही हैं, खोखली हो रही हैं, और मकान की मजबूती पे इंसान फख्र कर रहा है, तो निकालो इस गटर को, ऐसे झटक दो। हमारे हजरत एक जिक्र बताया करते थे कि रात को ना तन्हाई में बैठ के ये जिक्र किया करे, ये जिक्र हदीस से साबित नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है, ट्रेनिंग के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, इसलिए इसको सुनना समझना जायज नहीं है। वो जिक्र करवाते थे, बहुत से अकाबिर करवाते हैं ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा में क्या करना है, गर्दन यहां लेके जानी है, ला इलाहा कोई माबूद नहीं, ये तसव्वुर कर रहे हैं दिल से अल्लाह के अलावा सब चीजें निकल रही, निकाल के बाहर फेंक रहा हूं, इस तसव्वुर का ना बड़ा असर पड़ता है दिल के ऊपर। ला इलाहा सब निकाल के, बहरिया टाउन निकालो सबसे पहले इसमें। हाँ बहरिया, आपको नहीं पता बहरिया टाउन का, आप बाहर से आए ना, हमारे यहाँ वो कामयाब है जो बहरिया टाउन है और वो नाकाम है जो बहरिया टाउन नहीं है। तो हमारे यहाँ जन्नतुल फिरदौस में रियाज मलिक है जिसका बहरिया टाउन, ये जन्नत जो दुनिया में बातें करते हैं लोग अब उसको नहीं मानते, कहते हैं भाई तेरे प्लॉट कितने हैं, तो ला इलाहा का मतलब निकालो दिल से, कोई नहीं है, जो गंद भरा हुआ है ना, दुकान प्लॉट जायदादें जागीरें, जिधर दिल अटका हुआ है, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरा प्लॉट, मेरा ये सब मेरा मेरा करके, जो मेरी गाड़ी, ये सब फजूल चीजों को ला इलाहा में तसव्वुर करके निकलो। हालांकि उस वक्त हमारे पास थैला भी नहीं था, हम तो खुद तालिब इल्म थे, लेकिन कहते थे निकालो दिल से। रात को 100 दफा ना ये जिक्र करवाते थे, ला इलाहा सब निकाल दिया, इल्लल्लाह, फिर इल्लल्लाह में चोट मारते थे दिल पे, इल्लल्लाह सिर्फ कौन है, अल्लाह है। तो अला कुल्लु मा खलल्लाह बातिल, हदीस में आते हैं अल्लाह के अलावा सब बातिल है। इसका हम आज की जबान में तर्जमा करेंगे, अल्लाह के अलावा सब बकवास। सब क्या है, बकवास। अगर सब बकवास ना होता तो मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह दुनिया देता ना, और फिरौन को गरीब रखता कि मूसा तो मेरे हैं तो इनको दुनिया बहुत दूंगा, और फिरौन मेरा दुश्मन है, इसको खाने पीने के लिए रोटी, इसकी फैक्ट्रियों में आग लगाऊंगा, क्या कराऊंगा। फैक्ट्रियां तो फिरौन की चल रही थी, उसके महल्लात के नीचे नहरें बह रही थी, और मूसा कलीमुल्लाह को फिरौन गुर्बत के ताने देता था, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, शादी करने के लिए तो 10 साल बकरियां चराई है इन्होंने। आप शादी करते हैं ना, असल में कैसे भाई इतने अच्छे खानदान में शादी हुई, बताते हैं यार एक्चुअली मेरा बिजनेस, और वो उन्होंने ऐसा मेरा स्टेटस देखा कि खुद ही दे दी उन्होंने। और गरीब आदमी, अबे तुझे कैसे मिल गई, तो क्या कह रहा था, यार किसी का रक्षा उधार लेके गया था मैं बताने के लिए, वो बेचारा फख्र कर सकता है। तो फिरौन ये ताने देता मूसा अलैहिस्सलाम को कि अमाना खैरुम मिन हादल लज़ी हुआ महीन, मेरे पास दौलत ही गरीब। तो इससे पता चलता है अल्लाह के अलावा इस दुनिया में सब कुछ क्या है, बकवास। हमारे नबी कचरे के ढेर पे सहाबा के साथ गए, एक मरी हुई बकरी का बच्चा, सॉरी मरी हुई बकरी का बच्चा नहीं, बकरी का मरा हुआ बच्चा, समझते हो, बकरी का मरा हुआ बच्चा, मुर्दार होता है ना, बू आ रही होती है, फूल फट रहा होता है। आपने सहाबा से फरमाया कोई है जो इसको कुछ दिरहम में खरीदे। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह इस गंद को कौन खरीदेगा। आपने फरमाया अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत इससे भी कम है, जो हम इसको लिफ्ट करा रहे हैं ना, मेरा प्लॉट मेरी गाड़ी, चंद असल में ये समझ में आती नहीं है, आंख बंद होगी तो समझ में आ जाएगा यार किस चीज पे मैंने मेहनत। तो दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालो, और ये जिक्र तन्हाई में इज्तिमाई ना करे, बिदअत ना बन जाए। लाउड स्पीकर खोल खोल के भी मस्जिदों में हो रहा है, टोपी ड्रामे शुरू हो जाते हैं, हर चीज को ना लोग एंटरटेनमेंट का जरिया बना लेते हैं। अब ये जिक्र मैंने बता दिया तो पता चला मस्जिदों में प्रोग्राम चले, आइए हमारे यहाँ 3:05 पे जिक्र होगा, फिर हा हू रोना धोना करना कराना कुछ भी नहीं होता। तो तन्हाई में बैठ के अगर 100 दफा ऐसे कर लेना, ला इलाहा, हल्की आवाज के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप कई दिन तक कंटिन्यू करेंगे, आपके दिल की कैफियत बदलना शुरू, फिर आपको लगेगा यार ला इलाहा कोई नहीं है, सब बकवास है। फिर कोई आपसे आके कहेगा ना बहरिया टाउन, आप कहोगे मैं तो रात को 100 दफा दिल से ये बहरिया टाउन निकाला है मैंने, तो किस बहरिया टाउन की बात कर रहा है। दुनिया रखो जरूर, ऐसा ना हो कि प्लॉट ही बेचने सुबह उठ के, 3 प्लॉट थे बहरिया टाउन में बच्चों के लिए रखे हुए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह बहरिया टाउन निकाल के सुबह का उठा के दे दो किसी को, बस। तो इतना करें जितना अफोर्ड कर सकते हैं। ये तो हमारे नबी ने तो रखा ही नहीं ना, लेकिन हमें हुक्म है, हम कमजोर लोग हैं, रख लो। अगर अल्लाह ने वसाइल दिए, दिल ना लगाओ। दिल लगाने का क्या मतलब है, फैक्ट्री उस लड़के ने रखी थी मगर दिल में भी रखी हुई थी, तो मैंने कहा दिल से फैक्ट्री को क्या करो, निकाल दो। जब निकालोगे तो क्या होगा, दिल में मोहब्बत है या नहीं है, इसकी अलामत है छूट जाने पे नुकसान कितना होता है। देखो बहुत से लोग अपनी बीवी से कहते हैं मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, पता चलेगा मरने पे नुकसान कितना हो, अफसोस कितना हो रहा है। आप रहते तो सभी मियां बीवी इकट्ठे ही है ना, क्या ख्याल है, सुबह वो नाश्ता बना के देगी, आप खा लोगे, आपके बच्चों को सब मोहब्बत से हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। इससे थोड़ी पता चलता है कि आपको इससे मोहब्बत भी है या नहीं है। अगर वो मर जाए, उसको कैंसर हो जाए, आपके दिल में आएगा चलो यार
बाजना ऊपर ऊपर से डॉक्टर साहब बहुत टेंशन में, अंदर अंदर से यार खुद से जा रही है, जाने दो। जैसे एक 2 नंबर मौलवी साहब थे बिदती, वो तकरीर करते थे चोरी हराम चोरी हराम चोरी हराम। एक दिन उनके घर में खाना नहीं, तो उनकी बीवी ने कहा क्या करूं भाई? उन्होंने कहा पड़ोसी की मुर्गी चोरी कर लो। उन्होंने कहा भाई पड़ोसियों का आप तो खुद चोरी के खिलाफ बयान करते हैं। उसने कहा भाई हम शोरबे से लगा के खा लेंगे बोटियां, चोरी की तो बोटियां होंगी ना, बोटियां नहीं खाएंगे हम। अब उनकी बेगम ने सालन पकाया और देगची को उंडेलने लगी ताकि शोरबा आए और बोटियों को चम्मच से पीछे करने लगी। तो ये कहते हैं भाई जो खुद से आए आने दो, चोरी तो वो है ना हम खा रहे हैं, हम थोड़ी खा रहे हैं, खुद ही खा रही, कशिश सिकल ग्रेविटी की वजह से आ रही है ये। तो बाज लोग बीवी से इतने बेजार होते हैं, इलाज भी कर रहे हैं जिम्मेदारी समझ के, लेकिन दिल में ये होता है अगर खुद से मर रही है ना तो अल्लाह तू समझता तो है ना मैं क्या कहना चाहता हूं, तो साथ रखना। इससे नहीं पता चलता कि आपको इससे मोहब्बत है या नहीं है। लोग रह लेते हैं, पैसा भी रख लेते हैं, मोहब्बत का इससे पता चलता है छूट जाने पे गम कितना होता है। गाड़ी रखें, बंगला रखें, छूट जाने के लिए तैयार रहे, छूट गई तो कोई मसला नहीं है यार। तो मैंने उन साहब को कहा कि ये फैक्ट्री में अभी से फर्ज कर लो आग लग गई है और सब बर्बाद हो गया, अब आप धोती बनियान में घूम रहे हो तो क्या होगा? बस मैंने कहा वो भी से फर्ज कर लो। मैंने कहा यार बड़ा सुकून मिला है। तो मैंने कहा ये सुकून आपका फिर खत्म हो जाएगा, फिर फैक्ट्री तो निकालो इसको दिल से। और दिल से दुनिया निकालने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है सदका किया करो। जब रोकड़ा खर्च करता है ना दिल खींचता है। हम जो सदका करते हैं ना उसमें टेंशन नहीं होती हमें, इतना करो जिससे थोड़ी सी तकलीफ हो कि क्या कर दिया यार, क्या कर रहा हूं। हदीस में आता है बेहतरीन सदका वो है कि जब तुम करो तो तुम्हें डर हो कि गरीब ना हो जाऊं। तामुलुल गिना व तख्शल फकर, और ना करने में उम्मीद हो कि बड़ा पैसा बना लूंगा। इस कंडीशन में जब करोगे ना तो ये सबसे बेहतरीन सदका है। तो सदका किया करो, दे दिया करो यार। ये हमारे हजरत फरमाते थे एक आदमी दुकान से इतनी मोहब्बत हो गई उसको, एक दिन उसने कहा कि मुझे इतना दुकान में दिल अटक गया, एक दिन में दुकान बंद करके बैठ गया। मैंने कहा बाहर में जाए, अपनी इस्लाह के लिए ना, कोई बात नहीं नुकसान करो यार अपना, हर वक्त दुकान 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 ऐसी की तैसी ताला लगा के घर बैठ गया कि जब नॉर्मल कंडीशन में होऊंगा फिर आऊंगा। जैसे किसी को इश्क हो जाए ना किसी से, अब मिल तो रही नहीं है वो, तो इश्क में वो पागल होना शुरू होता है। तो बेवकूफ लोग क्या करते हैं, हर वक्त उसकी याद दिमाग में, हर वक्त उसको देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, पुराने मैसेज पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं। बेवकूफ ये करते हैं। अक्लमंद क्या करता है, लानत भेजो यार सही है ना, नंबर ही ब्लॉक कर दो ऐसी की तैसी। और जब ये कैफियत खत्म हो जाएंगे फिर देखूंगा शादी हो गई नहीं होगी, दोबारा ट्राई करके कोशिश करूंगा। पाकिस्तानी छोड़ता तो है नहीं, कहते फिर 1 साल बाद दोबारा ट्राई करेंगे। तो अक्लमंदी का तकाजा है। तो जल्दी से बस हदीस मुकम्मल कर दूं। नबी ने फरमाया जिसने ख्वाहिशात को हदफ बना लिया तो अल्लाह फक्र फाका उसके सामने लाके खड़ा कर देंगे। करोड़पति होगा मगर आगे फक्र फाका उसको डरा रहा होगा, भाई मैं हमला कर दूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। इस खौफ की वजह से लाइफ को एंजॉय नहीं करेगा। जअल्लाहु फक्रहु बैना अनैहि व फर्रका अलैहि शमला। दूसरी सजा दुनिया में उसको ये मिलेगी कि उसकी फिक्रों को बखेर देंगे अल्लाह ताला। इतने मसाइल होंगे कि मेरा ये सिर्फ एक पैसा मसला नहीं होगा, यार ये काम भी हो जाए, यार ये भी हो जाए, यार ये भी हो जाए, यार फला से ताल्लुकात भी ठीक हो जाए, या लोग मेरी मुखालफत करने वो भी छोड़ दें, यार वो फलाना, यानी वो इतने अंडे बच्चे होंगे कि सारे अंडों से चूजे निकले हैं, उसकी ये ख्वाहिश होगी। हालांकि कभी मुर्गी के सारे अंडों से चूजे निकलते हैं, 2-4 तो खराब हो जाते हैं ना। तो फर्रका ये और अजीब टेंशन, सुकून नहीं होगा, ये भी उसकी फिक्रें अल्लाह क्या कर देगा, उसके सामने बिखेर देगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बहुत सारी टेंशनें अगर एक पोटले में हो ना, इंसान कहता है उठा के पोटला फेंक दो खत्म, और वो पोटला खुल के बिखर जाए। एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो, उसको कमबख्त को समझ में ही नहीं आएगा इन टेंशनों से मैं जान छुड़ाना शुरू कौन सी वाली टेंशन से करूं, मैं कौन सी वाली टेंशन को मैं पहले फेंकूं, फिर इतनी बिखरी हुई होंगी उसमें डूबा हुआ होगा वो। और आगे आपने फरमाया अततहु वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिर ला। ये सारे काम दुनिया के लिए कर रहा था ना, वो 2 बखेड़े पाल लिए उसने, दुनिया के लिए सब कुछ कर रहा था, और उसकी 2 सजाएं तो अल्लाह फौरन दे देगा, फक्र फाके का खौफ और टेंशनों को बिखेर देगा। ये 2 टेंशनें तो चलो हम कहते हैं यार दुनिया मिल जाती तो चलो ये टेंशनें भी कबूल है। अल्लाह कहते हैं मिलेगी उतनी जितनी मुकद्दर है। नबी ने फरमाया मिलेगी उतनी नहीं जितनी इसकी चाहत है, उतनी जितनी अल्लाह ने लिखी हुई है। अगर ये ज्यादा की कोशिश करेगा तो हो सकता है धेला भी ना मिले, और हो सकता है डबल मिल जाए। तो ये भी इसकी चाहत पे नहीं है, ये किसकी चाहत पे है, अल्लाह की। तो यकीनी फिर भी नहीं है वो, फिर मैं चुटकुला सुना दो ना, यकीनी फिर भी नहीं है। एक आदमी को बीवी अच्छी नहीं लगती थी, बेचारी ने हर तरह से कोशिश कर ली कि मैं अपने मियां को अच्छी लगूं, अच्छी फिर भी नहीं लग रही इसको। एक दिन वो बड़ी खूबसूरत लिपस्टिक और खूबसूरत जेवर और खूबसूरत साड़ी और बड़ा खूबसूरत लिबास, हर चीज बड़ी वीआईपी पहन के आ गई। अभी ये बीवी की तारीफ कर रहे हैं, यार क्या खूबसूरत चूड़ियां पहनी हुई है, थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया, क्या खूबसूरत साड़ी। इनको लड्डू फूट रहे हैं कि आज तो मेरा मियां बड़ा खुश है, बहुत अच्छा माशाल्लाह ड्रेस आपने, क्या खूबसूरत लिपस्टिक। एक चीज
चीज की तारीफ करके कहते हैं अच्छी फिर भी नहीं लग रही, इतना कुछ अच्छा पहना हुआ है मगर तू फिर भी अच्छी नहीं लग रही। ये मतलब है इस हदीस का कि इतनी टेंशनें उठाने के बाद हो सकता है दुनिया मिले फिर भी नहीं, वहीं का वहीं खड़ा रहे जहां से चला था। और इसके मुकाबले में आपने फरमाया मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जिसने इस दुनिया को पसे पुश डाल के कहा मेरा हदफ आखिरत है, ये दुनिया असल हदफ है ही नहीं, मिले ठीक है नहीं मिले ऐसी की तैसी, ये ऐसी की तैसी याद रख लें, मिले ठीक है बहरिया टाउन में प्लॉट मिल गया ठीक है, नहीं तो गंदे नाले पे ले लेंगे, मिल गया ठीक है नहीं तो रेडी लगा लेंगे, मिल गया ठीक है नहीं तो वैसे ही बैठ जाएंगे, ठीक है ना। ये जिसका ये खौफ, और असल क्या है आखिरत, मुझसे गुनाह ना हो जाए कोई, अगर हो जाए तो जल्दी से तौबा करके अल्लाह को मनाओ। आपने फरमाया जिसने आखिरत को हदफ बना लिया, जन्नत तो बाद में मिलेगी, कुछ इनामात दुनिया में मिलना शुरू हो जाएंगे। पहला इनाम जअलल्लाहु शमलहु जमअलहु मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, उसको फक्र फाका का खौफ था ना, फरमाया इसके दिल में अल्लाह गिना, इसके दिल को मालदार बना देगा, इसको ऐसा लगेगा यार जितनी मेरी जरूरत नहीं है अल्लाह ने रिस्क की बाल्टियां मेरे ऊपर उड़ेल दी है, मेरी जरूरत सुबह 2 रोटी की है और रोटी के बजाय अल्लाह पराठे खिला रहा है, अजीब बात है या नहीं है। मेरी जरूरत थी सिर्फ चाय पराठा मिल जाए और अल्लाह मुझे अंडे भी खिला रहा है, नहीं यार ये समझ में तो रहने दो, बस ये आखिरी है, आप लोग भी बहुत थक गए होगे ना। मेरी जरूरत थी कि मैं किसी तरह बस रोटी और पानी मिल जाए निवाला हलक में उतार लूं, क्योंकि मुसाफिर खाना है ना। अरे बस में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, शदीद भूख लग रही है, आदमी कहता है यार 2 निवाले कहीं स्टेशन से खरीद के ले आ, आगे फुप्पो का घर आने वाला है पेशावर में, चाचू का घर आने वाला है, तो मजे ही मजे बकरे रखे हुए वहां पे, सफर की टेंशन थोड़ी लेगा, फिर क्यों लेगा टेंशन वो। लोग कहते हैं ये सीट सफर में तुझे जो है ना ट्रेन में बड़ी बेहतरीन सीट मिली लेकिन तेरी नहीं है, ये तुझे छोड़नी पड़ेगी। आदमी कहता है क्या मसला यार, मेरी हो वसीम भाई की हो, मुझे तो बैठने से मतलब है। तो कहता है घर मेरा जाती हो या किराए पर हो, रहने से मतलब है। बनाया वसीम भाई ने करोड़ों रुपए का, 20-25 हजार किराया देके मैं रह रहा हूँ, लाइफ को एंजॉय मैं कर रहा हूँ, बेवकूफ वो है जिसने बनाया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यार तुम्हारे पास अपनी गाड़ी नहीं, तुम टैक्सियों में जाते, कोई बात नहीं यार, टैक्सी खरीदी उसने, मैं 500 रुपए देके सफर मैं कर रहा हूँ, तो मेरी जरूरत तो नहीं थी। लोगों तो पैदल सफर किए हैं इतने लंबे लंबे, मूसा अलैहिस्सलाम तो मिस्र से मदियन पैदल गए हैं और हम यहाँ से सदर पैदल नहीं जा सकते, तो हमारी जरूरत थोड़ी है। लेकिन अल्लाह ने इतना एहसान किया, ग्रीन बस बना दी भाई। इमाम मेहदी के आने से पहले पहले कराची में ग्रीन बस चल पड़ी, सुभान अल्लाह। जिस कराची में गटरों के ढक्कन नहीं है उस पर अल्लाह ने इतना इनाम किया, ग्रीन बस चल रही है। और कुछ लोग तो हमारे ऐसे हैं 50 रुपए देकर सुबह से लेकर रात तक एयर कंडीशन के चक्कर में बैठ गए, वो कि घर में गर्मी लग रही है तो 50 रुपए दो और एसी में लाइफ को क्या करो, एंजॉय करो। ऐसे भी लोग हैं, वो सुना फिर उन्होंने कोई कानून चेंज किया। शुरू में ऐसा आया था कि 50 रुपए तो बैठे रहो कोई नहीं पूछेगा, तो लोग सुबह फजर के बाद जाके बैठ गए खाना वाना लेके, रात को उतर के घर आ गए। उन्होंने कहा सारा दिन आज ठंडक में हमने गुजारा है, ठीक है। तो नबी ने फरमाया जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, अल्लाह उसके दिल में गिना। तभी तो मैंने बास गरीबों को बड़ी पुरसुकून लाइफ में देखा है। एक गरीब के 10-15 बच्चे थे, मियां बीवी और फिर माँ बाप भी उसी के साथ, और वो मौसम्बियां बेचता था ठेले पे। मैंने कहा यार कैसे इस मौसम्बी में खिला लेते हो सबको। कह रहे यार अल्लाह का दिया बड़ा फजल है, सुबह खाना भी पकता है, आटा भी, दोपहर का खाना भी, रात का खाना भी, इसी में खाते हैं, रात को सोते हैं, अल्लाह का फजल है, किराया भी निकल आता है घर का। मैंने कहा ये देखो, एक वो फैक्ट्री वाला है जो कह रहे हैं लाशूर में क्या है, मुझे खौफ है, खौफ। क्यों? जब आखिरत असल बना ली तो फिर इंसान को जितना मिलेगा उससे वो समझता है मुझे मेरी मुसाफिर को इतने की जरूरत नहीं होती। ऐ अल्लाह तू मुझे मेरी जरूरत से बहुत ज्यादा दे रहा है, मुझे जरूरत इतने की नहीं है, समझते हो। बल्कि अगर गाड़ी नहीं भी होगी कहेगा अल्लाह तूने पांव से माजूर लोग पैदा किए हैं और मेरी दोनों टांगे सलामत हैं, जो कांप भी नहीं रही हैं। बाद लोगों की टांगे कांप रही है ना, तो मेरी दोनों टांगे सलामत हैं, ये बड़ी फजीलत की बात है। तो हर चीज पे क्या रहेगा वो खुश। हम देखो ये बातें जब इंसान किसी की जिंदगी में देखता है ना फिर समझ में आती है। इसलिए कहते हैं बुजुर्गों की सोहबत बहुत जरूरी है। हमने ये चीजें अपने शेख में देखी हैं। इंतहाई गुर्बत में भी कहते थे अल्लाह ने इतने इनामात किए हैं कि मुझे शर्म आती है, शर्म आती है कि अल्लाह तेरे एहसानात का हम कुछ भी तो बदला नहीं दिया ना। हालांकि क्या था, हमारे शेख के पास कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं, किराए के घर पे सारी जिंदगी गुजारी और दिल से कह रहे होते थे अल्लाह। और कभी कोई परेशानियां माजी के बयान भी करते ना तो वो कहते मैं सिर्फ आपको सबक देने के लिए बता रहा हूं, वरना वो बयान करते हुए मुझे शर्म इतनी आ रही है कि अल्लाह कहेगा 2-4 परेशानियां मैंने तुझे जिंदगी में क्या दी और तू लोगों के सामने गाता फिर रहा है। शर्म आती थी उनको। हमारे यहाँ जिंदा रहने का कितना शौक है ना लोगों को, बड़ी उम्र बड़ी उम्र। हजरत कहते जब मैं 63 साल का हो गया तो मुझे तो अब शर्म आने लगी, यार अभी भी मैं जिंदा हूँ, कितने लोग दुनिया से चले गए। अब ऐसा ना हो किसी बूढ़े को जाके आप कहें कि आपको शर्म आनी चाहिए, ये तो भाई बदतमीजी की बात होगी। बूढ़ों के लिए दुआ करें अल्लाह इनको और ज्यादा लंबी उम्र दे, क्योंकि जब आप 63 के हो गए आपको शर्म नहीं आएगी, आप कहोगे यार किसी तरह बच जाऊं। और कोशिश भी करो उनको बचाने की, क्योंकि बात बेवकूफ होते हैं। हमारे रिश्तेदार हैं जाके हमारे नाना से बोल दिया
کہ اتनी लंबी उम्र से अल्लाह ने पनाह मांगी है, वो 99 साल के हुए थे। तो हमने कहा कमबख्त ही इनके सामने कहने का थोड़ी, इतनी लंबी उम्र से अल्लाह ने पनाह मांगी है। तो जाअलल्लाहु गिनाहु खिफी क़ल्बी, अल्लाह उसकी तबीयत में क्या पैदा कर देगा कहना, जब मिलेगा लोगों से लोग कहेंगे अपना घर अभी तक नहीं बनाया, कह रहे यार बनाया तो वसीम भाई ने था, रह कौन रहा है, मैं ऐसा एंजॉय कर रहा हूँ, नल के तोड़ो, दीवारों को नीला पीला करो, किराएदार जो वाट लगाते हैं, बच्चों ने व्हाइट बोर्ड बनाया था दीवारों को, कीले ठोको उसमें ऐसी की तैसी करके, जब ज्यादा गुस्सा आए वो निकाल दे तो निकल के दूसरा ले लो, किराए पे तो हर जगह घर मिल जाते हैं। तो वो खुश रहेगा, खुश। और आपने दूसरा इनाम क्या बताया, जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी व जमअ लहु शमला, सारी टेंशनें अल्लाह जमा करके एक पोटले में बंद कर देंगे, उसको बता देंगे तेरी ये 2-4 टेंशनें, इससे ज्यादा दुनिया के गम भी उसके 2-4 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। एक कमारे को गम होगा जो मेरा बयान सुनता है मेरी शादी हो जाए, बस टोटल गम, टोटल पोटले में ये 2-4 ही गम है उसके। दुनियादार आदमी के गम एक तो बहुत बड़ा पोटला है और वो भी क्या है, बिखरा हुआ है, और इसके 2-4 अगर होंगी भी तो वो एक पोटले में जमा लहू, अल्लाह उसको क्या कर देगा, जमा। यार बस अब्बा बीमार है और कोई ख्वाहिश नहीं है, अब्बा ठीक हो जाए। ख्वाहिशात क्या हो जाती हैं, महदूद, ज्यादा लंबी चौड़ी ख्वाहिशात है ही नहीं दुनिया में, मुसाफिर खाना है भाई। वजमा लहू शमला, और आपने फरमाया हुआ आता तो दुनिया वही रागिमा, पहले वाले की हालत क्या थी, सब कुछ कर लिया, अच्छी फिर भी नहीं लग रही, वही था ना, मिला फिर भी नहीं। फरमाया इसके पीछे दुनिया आएगी, नाक रगड़ते हुए जलील होके आएगी, ये दुनिया को लिफ्ट नहीं कराएगा। इस हदीस का मतलब समझना है ना, अहलुल्लाह की जिंदगियां देखो हमने देखी हैं, ऐसे रिस्क के दरवाजे खुलते थे उनको, हमारे हजरत के पास जब नोटों की घड़ियां आती थी ना, जब रिस्क के दरवाजे खुले, हजरत से गिना नहीं जाता था, क्योंकि हजरत का टाइम बड़ा कीमती था, गिनते थे यार क्या मसला है यार, कई दफा ना 2-2, 3-3 नोट गिन लेते थे, फिर कहते थे बस वो दे देना जितने भी हैं, और आपके पास आए बैठ के यूं यूं करके ना 6-6 दफा थूक लगा लगा के यार ये फिर लाइट में देख रहा है। हमारे महल्ले में एक बंदा रहता था, कोई उसको जानता नहीं है, बहुत पुरानी बात है इसलिए गीबत नहीं आई, वो इतना कंजूस दुकानदार था, उसका नाम बनिया रखा हुआ था लड़कों ने। उस वक्त चवन्नी अठन्नी भी चलती थी, चवन्नी चारा ने ना 1 रुपए का 1/4, हमें याद है हम कोई चीज खरीदने आते ना चवन्नी, तो चारा ने को ना यूं यूं करके देख रहा होता था, किस नकली तो नहीं, अबे चारा ने कहां से कोई नकली छापेगा यार, इतना देख रहा होता था यूं यूं करके ना उसको, उसका नाम लड़कों ने रख दिया था बनिया, ठीक है ना। तो ऐसा दिल में हवस, ऐसी हवस, गिन रहे हैं बैठ बैठ बार बार। तो हमने देखा है, तो नबी ने फरमाया आता तो हो दुनिया, दुनिया उसके पास आएगी, और ये इस्तिगना के साथ, वही रागिमा, ये दुनिया के पीछे नाक नहीं रगड़ेगा, दुनिया इसके पीछे नाक रगड़ेगी, जलील होके आएगी इसके पास, और ये लिफ्ट नहीं कराएगा, मोहब्बत नहीं देगा उसको, इकराम तो कर लेगा, इज्जत तो दे देगा कि भाई आ रही आने दो, मोहब्बत नहीं करेगा उससे, भाई हम फाना चीजों से दिल नहीं लगाते। प्लॉट मिल गया बहरिया टाउन में, अच्छी बात है माशाल्लाह, नहीं मिला कोई बात नहीं, मिल गया ज्यादा थोड़ी दिल लगाना है उसको लिफ्ट थोड़ी करानी है ज्यादा, हर वक्त उसी को, आपको पता है मेरे 3 प्लॉट है बहरिया टाउन में, आपको पता है मेरा घर बन गया है, आपको पता है ये है, आपको पता है वो है, हर वक्त पागलों की तरह चीख रहे होते हैं। तो इसलिए दिल का सुकून चाहते हो तो इस दुनिया को दिल से झटक के निकालो, ऐसी की तैसी, सही है। और हदफ किसको बनाओ, आखिरत, और उसमें यही है गुनाहों से बचो भाई। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।